Good morning, students. We are back with our chapter number 9, halves and quarters. I had given you homework till here. Hope you had done it. Now, in this video, we will start the next part of this chapter. Halves and quarters for a meter. As you know, अब हम यहाँ पे हमने एक मेजरमेंट ले लिया है मीटर. अब हमें मीटर से रिलेटेड हाफ और फुल, क्वार्टर, 3/4 मीन्स 3/4, ये सब चीज़ें हमें निकालना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चंस. सो you can see here the question is, using your meter scale cut a string of 1 meter. आपके पास मीटर स्केल होगी, उसमें से आपको क्या करना है, एक 1 मीटर का स्ट्रिंग यानी कि धागा कट करना है. On this string, mark length 1/2 meter and 1/4 meter and 3/4 meter. Using your string, draw a line of length 1/2 meter on the floor. How many centimeters long is the line? So सबसे पहली चीज़, आपको एक धागा लेना है, ये आप खुद करेंगे और फिर उसको आपको करना है. तो करने के लिए सिंपल चीज़ है कि हमें किसी भी चीज़ को अगर उसको इन पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1/2, 1/4 and 3/4, then it is very easy. For example, I can give you an example right now. As you can see here, I have a paper strip. Now, अगर मुझे इसको हाफ फोल्ड करना है, हाफ कट करना है या फिर हाफ पे मार्क लगाना है, so what I will do, I will just fold it together the end point and put a mark on this place. Because it is a paper, it has already a mark because it is folded here. But if it is a thread, you have to put a mark here with a sketch pen. You can mark it because with pen it will take lot of time. With the sketch pen it will come easily and it is liquid, so it will stay for a long time. So when you will put it with a sketch pen, can put the mark here. Then again, half of half is 1/4. Half of half, this means after folding it, fold it one more time and then put the mark here. First from this side, then same thing you do with the another side. Because it is a paper, we have to fold it both sides. But if it is a thread and you are doing with a sketch pen, there will be 2 marks, one this side and one this side. So from one side you can say this is 1, this is 1/4, this is half, and this is 3/4, and this is full 1. Okay, so this way you can mark it. Just do it and measure it. And to know what is the exact length, first you need to remember that what is 1 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. So when you will multiply it, you will get half 50 centimeter, 25 centimeter and 75 centimeter. Okay. Now turn the page, next page. So here are the answers that we have to write in the book itself. Okay. यहाँ पे अब आपको बुक में जो लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव शेयरिंग मिल्क. यहाँ पे क्या करना है आपको, दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क. ये जो बॉटल है ये पूरी फुल मिल्क से भरी हुई है, सिंगल बॉटल. नाउ 1 बॉटल होल्ड्स 1 लीटर. एक बॉटल में 1 लीटर है. दिस ऑल्सो यू नीड टू लर्न. ओके, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 millimeters. आफ्टर दिस, सो इन दिस, यहाँ पे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं. ओके, सो सिमिलरली what you have to do, the milk is put into 4 bottles so that each bottle has 1/4, that is 1/4 liter of milk. So हमें क्या करना है, पहले तो ये पूरी बॉटल है, ये पूरी यहाँ पे ऊपर तक टॉप तक मिल्क से भरी हुई है, यहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक. ओके, दिस इज़ 1 लीटर फुल. सो अब हमें करना क्या है कि हमें किसी भी तरह इस पर अलग अलग लेवल्स करने हैं.
और ऐसे लेवल करने हैं कि ये चारों में बराबर बराबर मिल्क जाए। सो हाउ कैन वी डू दैट? अब हमें पहले पता करना पड़ेगा कि 1/4 जो पार्ट है मिल्क का उसमें कितने मिलीलीटर्स होते हैं। सो when we have 1000 ml and multiply by 1/4, मैंने आपको पहले ही बोला था पार्ट that is given into whole is this, इसमें भी बोला है 1 लीटर होल होगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको एक छोटी यूनिट में करना पड़ता है कन्वर्ट। जो छोटी यूनिट है वो है मिलीलीटर्स। लीटर बड़ी यूनिट होती है और मिलीलीटर छोटी यूनिट होती है। सो हमें 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 250। सो इन सब में हमें इस तरीके से मार्क करना है कि ये 250, 250 एंड 250। सो ये है आपका चारों में 250, 250 मिल्क हमने इसमें शेड कर दिया। ओके, नाउ हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव? तो कितना आया है उसमें हर एक बॉटल में, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया है 250 ml ऑफ मिल्क। नाउ there is a question. Shan poured 1 liter of milk into 2 bottles so that the first bottle holds 3/4 and the other bottle holds 1/4 liter. So अभी उसने क्या किया शान ने कि इस तरीके से 2 बॉटलों में मिल्क को डिवाइड किया है कि इसमें 1/4 है, इसमें 3/3 है। तो अब हमें क्या करना है, शेड द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल, दोनों बॉटल्स में शेड करना है, जो कि हमने ये कर दिया है। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव? अब दोनों में कैसा है हमें कैसे पता चलेगा? हमें क्या करना है, इनमें से किसी एक का निकालना है मेजरमेंट कि एक में कितना है, और फिर हम टोटल 1000 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। सो व्हेन वी विल डू इट, हाउ वी विल डू इट, हाउ कैन वी सॉल्व इट? We can solve it like this. So one bottle has 3/4. This is 3/4, and the other bottle has 1/4. Okay, 3/4 and 1/4. Total is equal to 1000 milliliters. Okay, 1000 milliliter होते हैं 1 लीटर में. So when we will solve it, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें ये पता है 3/4 है और यहाँ पे पता है 1/4, तो हम 1/4 निकालते हैं। सो 1/4 ऑफ 1000 250, जो कि हम अभी निकाल चुके हैं, इसलिए हमें ये इजी पड़ा तो हमने इसको पहले निकाल लिया। तो हमें ये पता चल गया 1/4 वाले में कितना है 250 ml। सो अब हमें इसके लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1000 में से माइनस कर देंगे 250 ml, तो हमें इसका पता चल जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 750 ml। तो इसमें कितना है 750 ml। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न द पेज, मीन्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। बैलेंस द वेट। ओके, अब हमें इसमें करना क्या है कि इसमें हमें बैलेंस करना है वेट्स को। यहाँ पे वेट दिए हुए हैं, वेट्स मतलब जो वज़न नापने के लिए जो वेट्स यूज़ होते हैं वो है ये, और अलग अलग वेट्स दिए हुए हैं आपको 50, 500, 250 लाइक दैट। नाउ चूज फ्रॉम द वेट्स अबव टू मेक द 2 पैन्स इक्वल, इन हाउ मैनी वेज कैन यू डू इट? तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो बैलेंस बना हुआ है हमें ये पता याद रखना पड़ेगा ये चीज़ कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 grams। सो विद दिस हम क्या करेंगे, इधर कितना है 2 kg, यानी कि 2 kg में कितने ग्राम्स हुए 2000 ग्राम्स, राइट। 1 kg में 1000 है तो 2 kg में 2000 होंगे कॉमन, 3 kg में 3000, 4 kg में 4000 लाइक दैट। सो अब हमें 2 तरीके यहाँ पे बताना है कि हम इसको कितने तरीके से कर सकते हैं। या तो हम 1 kg के 2 ऐसे वेट्स रख दें तो वो 2 kg हो जाएंगे, 1 + 1 2 होता है तो बराबर हो जाएंगे।
तो हमें बैलेंस करना है। तो इसी तरीके से हम और कितने कर सकते हैं, हम 2, 500, 500, 500, 500 ऐसे 4 रख सकते हैं। 4 500 ग्राम्स के ये रख सकते हैं वेट्स, या फिर हम 1 kg का रख सकते हैं, 750 ग्राम्स का रख सकते हैं और 250 ग्राम्स का रख सकते हैं। इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी यही होना है, इसको हमें 3/4 kg करना है। 3/4 kg होता है 750 ग्राम्स। अभी हमने 1000 का निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, सो पीछे की यूनिट चेंज है, बट क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर और 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, पर यहाँ पे नंबर और वैल्यू सेम है ना, तो इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों का आंसर 750 ही आएगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। 7 ऐसे कौन कौन से हम वेट्स रखें ताकि 750 हो, तो ये 3 तरीके यहाँ पे हैं। आपको फाइंड करना है ये। टर्न द पेज अराउंड। वाई इज़ इट रॉन्ग, यहाँ पे आप ये देखिए और आपको यहाँ पे ये देख के बताना है कि ये रॉन्ग है तो क्यों है। सो इन दिस व्हाट यू हैव टू डू, कि हमें ये चेक करना है कि इसमें क्या गलती क्या है। ये 1/4 है, नहीं है। ये 1/2 है, हाफ है, नहीं है। क्यों? बिकॉज this triangle that is not shaded is longer than the smaller ones because the shape is not equal. ये जो लाइन है ये इक्वल नहीं है। अगर ये थोड़ा सा इस लाइन के सेंटर पे आती तो मे बी इट कुड बी हाफ, बट तभी भी ये उसका हमें मेजर करना पड़ता। सो हेयर ये वाला जो पार्ट है ये इसके एक एक पार्ट से बहुत बड़ा है। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट 1/4 ऑफ दिस फुल शेप। ओके, ये सब बराबर होने चाहिए, सिर्फ 4 पीसेस कर देना इज नॉट इक्वल। ओके, नाउ प्रैक्टिस टाइम। These are the questions you have to practice in rough copy. You do it. It is very easy. Okay, आपको क्या करने हैं, रिप और अनरिप। रिप मतलब होता है पके हुए। तो यहाँ पे टोटल मैंगोज है 60 और उनमें से ये पूछा हाउ मैनी मैंगोज आर रिप, कितने पके हुए हैं हमें ये फाइंड करना है। जबकि उन्होंने दिया हुआ है कि आधे उनमें से पके, हाफ ऑफ देम आर रिप, हाउ मैनी मैंगोज आर रिप। तो उन्होंने तो ये तो हमें उन्होंने रिप का पहले ही बता दिया कि आधे रिप है, पर हमें कितने नंबर हैं ये फाइंड करना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना है। सो पार्ट इंटू होल, सो 60 डिवाइड पार्ट इंटू होल, ये आपको करना है। फिर इसमें 32 चिल्ड्रन हैं टोटल, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज़। अब आधे आधे बराबर ही होते हैं, किसी भी चीज़ का आधा करोगे तो दोनों साइड बराबर बराबर मिलेगा। सो जो बॉयज़ का निकलेगा वही गर्ल्स का निकलेगा। तो हमें अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था कि 1000 में से निकाला था, ये इधर 25 का निकाल के फिर इसको माइनस कर दिया था 1000 में से 250 को, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। हम गर्ल्स का फाइंड करेंगे और फिर 32 नंबर में से उस नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर देंगे तो हमें बॉयज़ का नंबर मिल जाएगा। फिर इसमें दे आर 20 स्टार्स, 20 स्टार्स हैं, क्वार्टर ऑफ देम आर रेड। रेड कितने हैं, क्वार्टर यानी कि 1/4, क्वार्टर यानी कि 1/4। सो हाउ मैनी स्टार्स आर रेड, अब इनने ये पूछा है कि कितने रेड हैं। सो हम क्या करेंगे, पार्ट इंटू होल, 1/4 इंटू 20, पार्ट इंटू होल करा, आंसर आ गया 5। और सेकंड वाले में क्या करेंगे हम, टोटल 20 हमें पता है तो 20 में से -5 कर देंगे तो हमें नॉन रेड स्टार्स भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, रवि वॉन्ट्स अ पेंसिल, इट कॉस्ट ₹2, ही गिव्स 1 rupee coin, 1 half rupee coin and 1 quarter rupee coin, इज इट इनफ। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, 1 कैसे लिखते हैं, 1 रुपी, 1 रुपी ये रहा, ठीक है। नाउ हाफ रुपी कॉइन 50 पैसे होते हैं,
25। सो आंसर क्या है 1.75 रुपीज़। नॉट इनफ, क्योंकि 2 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 200 पैसे होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 1 पैसा 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़। अब इसको हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ द वे, एक और मेथड क्या है, वो मेथड ये है कि जिस तरीके से उन्होंने हमें दिया हुआ है हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि लुक एट है, उन्होंने हमें बोला है कि 2 रुपीज़ है, यानी कि फुल, ये 1 फुल है और ये 1 फुल है, तो ये कितने हो गए, 2 रुपीज़ हो गए। अब उन्होंने क्या बोला, उसने पहले कितना दिया, 1 रुपी कॉइन, यानी कि उसने ये पूरा 1 रुपी कॉइन दे दिया, यानी कि ये और ये तो पूरा हो गया। ठीक है, अब हम इसमें पार्ट्स बना लेते हैं, क्योंकि उसने जो सेकंड रुपी है उसको आध पार्ट्स में दिया है। सो उसने क्या किया, फिर हाफ रुपी कॉइन दिया है, प्लस उसने हाफ रुपी कॉइन दिया, तो ये हाफ और ये हाफ हो गया। अब अभी भी उसको 2 मीन्स हाफ और देना बाकी है। फिर उसने 1 क्वार्टर रुपी दिया है, 1 क्वार्टर मीन्स ये दिया है, ये वाला पार्ट हो गया, पर अभी भी ये वाला पार्ट बचा है। ओके, दैट मीन्स अभी भी उसको 1 क्वार्टर रुपीज़ और देने हैं। उसको कितने रुपए और देने हैं, क्वार्टर रुपीज़ और देना बाकी है। क्वार्टर रुपीज़ कितने होते हैं, 0.25। आप नंबर छोड़ो, इस तरीके से पार्ट से आप कर लो, सो यू विल गेट द आंसर ईजिली। पार्ट ज़्यादा ईजी होता है। सो हियर अवर चैप्टर एंड्स। Study well. I will send you the answers for this chapter. Thank you.